picture was shown to you, you must have written your story in the given sheet. Now this activity is continuation of the same. Initially, I would like each one of you to narrate your individual story. Timing for narration is strictly 1 minute. Mentioning number of characters observed, their age, gender, and mood respectively. Subsequently, briefly describe what led to the situation, what is happening in the picture, and what is most likely outcome. Once all of you complete individual narration, I would want you to discuss amongst yourself and arrive at common consensus on the number of characters, their age, gender, and most likely outcome, which most of you would like to agree upon. During this entire activity, follow certain guidelines. All of you will remain seated and address the group only. You are not expected to look at assessors, need not to greet like good morning or good evening. Directly without delay, just narrate your respective story in ascending order, starting from the first candidate till last candidate. The moment last candidate finishes narration, immediately start the discussion at your own. Individual narration should be short and precise. Don't take more than a minute. In case you exceed your time limit, I will give command next, which means next candidate will start speaking without any delay. Language to be used here is English. If you are stuck in between, you may switch to Hindi. Kindly revert to English as soon as possible. No third language is allowed during the entire activity. And timing for group discussion is 6 to 8 minutes. And aim is to find out common group story, the common consensus, not as to whose story is to be accepted. From the picture shown to us, I have perceived 4 characters in which 3 male and 1 female of age between 28 to 32. All mood positive. The hero of my story is Ram. Ram, of age 32, was a worker in a steel manufacturing factory in Bangalore. He saw the declining in the he saw the declining of their company growth. So he decided to organize a company meeting in his company and asked their feedback how to improve the situation. And in response of that, he makes some changes like improve the quality of his steel, focus on their advertisement, increase some salaries of their co-workers, and also organize some advertisement program in all over the city. After some times he sees the changes in his company growth, and his company grows fastly, largely satisfied. Gentlemen, I perceived 4 characters in the story. 2 are male, mood positive. 2 are female, mood neutral. Pulkit is a hero of my story, who is 25 years old, and he is a teacher in a DPS school, Delhi. So one afternoon, he planned a session with his fellow teachers to organize a seminar for needy students who lives in slum area of Delhi. So after next day, Sunday morning, he organized a seminar for the needy students and give them some needed items to study and aware them about education and some needed things to them, and thankfully and overwhelmingly meet their parents and support them with their education. Thank you. The picture shown to us, I perceived 4 characters. 3 are male, 1 is female. All are in the age group of 28 to 40 years. My hero of my story is Rajkumar, a young sarpanch that has been elected from of his village. His aim is to make his village smart and have a better education. So he works with his small team and gets to know that the school in the village is lacking internet, computers, and he wants to open a Jan Seva Kendra and ATM. So he makes a dossier about it and visits to the district magistrate of his district. He discusses the plan and wants funds for these things. He looks over the plans and is successful in making his village smart. Thank you. From the picture, opposite 4 characters, 2 males and 2 females between the age group of 30 and 35 years, all in positive mood. The action of my story is organizing blood donation camp in office. Raghav, 32-year-old unit manager posted in Bajaj Finance in Pune. On the occasion of World Diabetes Day, he had taken the initiative of organizing a blood donation camp in his office. For that, he took the permission of his seniors. He took the permission of his seniors and asked his fellow employees for helping him in organizing the camp.
He also took the initiative of contacting the nearby government hospital for setting up the camp. He, with the help of his he with the help of his fellow employees, created the posters, registered the name of the volunteers, made a certificate and also meals for them. On the day of the blood donation camp, he led to the successful organization of the event. Thank you. Gentlemen, from the picture, I perceived 4 characters, 2 male, 2 female. Rakesh, the protagonist of my story, is of age 24 and in positive mood. Rakesh was a hard-working and dedicated student, but he was skeptical about which career he wanted to pursue after 12th when his teacher counseled him to become an engineer. After becoming a successful engineer, Rakesh returned to his school and talked with his principal to organize a counseling camp where he and his colleagues helped various of students to finalize their career path in accordance to their skills and interest. Thank you. Gentlemen, I have perceived 4 characters in which 2 are male and 2 are female, aged between 30 to 40 years, and all are in positive mood. The action of my story is discussion on research paper, and the hero is Saurabh. Saurabh, 30 years old, PhD student of JNU. He is a student of political science and currently making a research paper on India-Maldives relationship. He collected the books from the library related to it and take the help of ChatGPT and make notes of it. And then he discussed the main idea to his department professors, and his professors give their opinion and suggested to make some changes. He made some changes and then gave the final report. And his research paper also selected for the publication in an editorial section of a renowned newspaper, The Hindu. Thank you. Hello friends, I have observed 2 male and 2 female characters from the picture shown to us, all of them around the age group of 24 to 25 years. Arnav, 24, having positive mood, is the main character of my story. The action of my story is creating a medical camp, setting up a medical camp for the awareness of organ donation. My story goes like this. Dr. Arnav, 24, the MBBS doctor in GMU Lucknow. On the occasion of organ donation day, he decided to set up a medical camp to create awareness about the organ donation. Thus, he formed a team of doctors, collaborated with the government hospitals and the NGOs, discussed the matter with them, and on the day of the camp, he promoted the event through social media, through invitation cards. Further, he counseled the individuals about giving donating their organs, made them registered to the online portals and through the document. Thus, with the combined effort led by Dr. Arnav, the organ donation camp was organized smoothly. Well, friends, according to the picture shown to us, I have perceived 3 male, 1 female of age group 30 to 50. They all seem to be in positive mood. The action of my story is introduction of coding classes in school premises. My story goes like this. Mr. Hertz, computer teacher of Indian Public Inter College, knows the importance of coding classes for becoming true tech leader of tomorrow's. So he talked with his plan with fellow computer teacher, principal and vice principal, and made a detailed plan to introduce coding classes in school premises after the in curriculum. So he taught the basics to the students of programming languages such as Java, Python, C++. He took them to computer laboratory for the practical learning. He also told them about the basics of simple mathematical operationals programs, and later on upcoming days made them Thank you. From pursue in my story, there are 4 characters in my story. There are 2 are males and 2 are females. The action in my story is discussing about college tournament. Sohail was. Okay, next. Gentlemen, from the picture shown, I perceive 4 characters. 2 are male and 2 is female. Age group is around 35 to 38 and all are in positive mood. The action of my story is organizing an annual function and sports meet in the school. Shiva, 35, male, positive mood, is a sports teacher in the Kendriya Vidyalaya, RDSU, Lucknow.
One day, his school has decided to organize an annual function and sports meet in the school for the children. And Shiva got opportunity to organize that event. Shiva immediately create a team of 4 members and planning for the annual function and sports meet in his school. He distributed the task like booking tent and inviting chief guest and booking sports equipments and booking medals and trophies for the students, and also he organized a cultural events for a successful annual function and sports meet. The students enjoyed a lot, and he organized a very successful event. Thank you. Friends, from the picture I perceive 4 character, 2, 3 males and 1 female, age between 30 to 50 and all a positive mood. My action conference plan for skill development, and my central character is Adit, 45 years old, employee in a Ministry of Skill Development. One day he called his juniors and teammates to draft a plan for a skill development in a rural area. So he make a good plan for help of his juniors, and also contact with the village sarpanches and took a permission to held a skill fair in villages, and he also made a skill fair in all the villages around the areas, and to develop the skill of the rural persons. And then after he got a good skills youth and get a good job. Thank you. From the picture, I perceive 4 characters, 2 females and 2 males, all from age 30 to 35. Males are in positive mood and females are in neutral mood. The central character of my story is Raju, who is 30-year-old employee of Infosys company. Recently, he got promotion to the manager post, so he decided to organize party to all the office members. He make the list of necessary food items, cold drink, snacks, etc., and also make the list of all workers and high officials so that he can invite them. He arranged adequate space for their sitting, and also arrange music for entertainment and singing for entertainment. Later, they enjoyed the party, and the remaining food items they sent to orphanage and animals. So we make a company like employment and skill development. Now let's divide this group into 2 parts, starting from chest number 1st till 79. We'll be having discussion in first round. Next. Just let me complete my point. As you all can see there, that there were 2 chairs vacant and people were something having the documentation. So friends, can we make the theme around like organizing citizens where everyone Okay, now last 1 minute all together discuss and come out with. So friends, We know the exact theme of Joy Boy Employment Fair. Okay, now time is up. And now nominate 1 person on the behalf of group who will give common group story. Nominate quickly. So from the pictures we have concluded, we have assumed 2 males characters and 2 females characters, and the action of our theme is action of our story is like organizing a youth development camp. So the main character is Raghav, 32 years SDM, posted in Lucknow only. So with the help of the NSDC National Skill Development Center, he has taken the initiative of organizing a youth development camp in the nearby villages of Lucknow only. So with the proper planning of his fellow mates and the SDMs and various other organization development officers, he has also referred with the previous statistic data, like the youth employment rate is also being very less in the cities. So he have also taken help of various other institutes, like the various other companies, like educating them and also skill developing the youth about the job opportunities.
and with the regress effects of all the things, he was able to increase the employment rate in the local villages. Got your idea. Any disagreements? No, sir. Okay. Firstly, the performance of this group is average, just average. Not, I will say, excellent. Now coming to the participation of individual during narration was varying from one person to another, and it was slightly low. Relevancy was also not there. Many of you could not relate a story and could not observe the stimulus correctly, hence failed in the very first approach, that is relation to stimuli. तो RTS जो है वो उसमें फेल हो गए काफ़ी लोग. It is time for individual debrief, because individual debrief करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि so that you learn from this PPNDT and improve. It is not there कि आपको मैं डिमोरलाइज कर रहा हूँ या मैं आपको डाउनग्रेड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. PPNDT में if you get rejected, remember, it means you are not completely tested. Many candidates, they get rejected in PPNDT, they think I am not possessing officer-like qualities. It's not like that. It is a limited scenario, it is stage 1. If you do not get selected during your stage 1 testing, it means आज का दिन अच्छा नहीं था आपका. Maybe during the given scenario you could not excel to the desired level. Maybe कहीं एक छोटी सी गलती आपने कर दी होगी, because यहाँ पे एक भी गलती आपने करी तो साइक पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजिस्ट विल नॉट फॉरगिव यू. साइक के साथ यही एक सबसे बड़ा दर्द है कि साइकोलॉजिस्ट इज़ वेरी काइंड व्हेन इट कम्स टू योर स्टोरी. आप लिखिए, आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कुछ लिखा है यार, मैंने पेज भर दिया, बट इफ़ यू कमिट वन मिस्टेक, योर स्टोरी लेवल इज़ नॉट गुड, तो साइक इज़ नॉट गोइंग टू फॉरगिव यू. नाउ कमिंग टू इंडिविजुअल डिब्रीफ, मैं डिटेल में बात करूँगा इस पिक्चर की कि आपको क्या करना है और आपने क्या गलती करी. सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि किनको ग्रेड दिया है मैंने. तो पहले उनके नाम मैं बताता हूँ. आपको थोड़ा सरप्राइजिंग भी लग सकता है, बिकॉज हमेशा ये होता है कि आपको लग रहा होगा हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट यू आर इन एज पर द करेंट परफॉर्मेंस. आप तो इन हो ही जाओगे आज के परफॉर्मेंस पे. ऑनेस्टली बताइए, आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैं इन हो जाऊंगा इस परफॉर्मेंस के साथ? जस्ट इंट्रोस्पेक्शन का पार्ट है. आपको क्या लगा एनालिसिस करके कि मैं तो इन हो जाऊंगा? ओनली वन? ओके, चलिए कोई बात नहीं, 1 से ज़्यादा हैं. चेस्ट नंबर 83 यू आर इन. देन चेस्ट नंबर 98 you are in. Then chest number 148 you are in. And last chest number 62 बच गए and you are also in. लास्ट में जब आपको कॉमन ग्रुप स्टोरी के लिए नॉमिनेट किया गया, देन यू नरेटेड स्टोरी वेल, बट उससे पहले तक आप आउट थे. बट व्हेन यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, आई डोंट नो व्हाई पीपल नॉमिनेटेड यू फॉर कॉमन ग्रुप स्टोरी, वेयर एज योर स्टोरी वाज नॉट वेल रिलेवेंट ऑल्सो. तो लोगों ने आपको बचा लिया एंड यू ग्रैब्ड अपॉर्चुनिटी वेल, यू नरेटेड वेल, यू टुक कॉमन ग्रुप पॉइंट्स एंड यू एडेड all the points from the group members, and then you changed, you could not continue with your story obviously because your story was not relevant. तो ऐसे परफॉर्मेंस के बाद कॉमन ग्रुप स्टोरी से आप इन हो जाते हैं. ठीक है, तो क्लैप फॉर देम. प्लीज हैव अ सीट, बैठिए. अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इन नहीं हुए तो कहाँ गलती करी आपने और आपको क्या इम्प्रूव करना है. चलिए, चेस्ट नंबर 04, चेस्ट नंबर 4 आपको बताने की ज़रूरत है. आपको पता चल गया कौन सी एंट्री है बेटा. मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ अच्छे होने से एसएसबी में रिकमेंड नहीं होंगे, बिकॉज इट इज़ अ प्योरली टेस्ट ऑफ योर एकेडमिक एंड पर्सनैलिटी. दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए. मैथ अच्छी पढ़ लिया, मैथ्स अच्छा आप टॉप कर गए, बट एसएसबी में नहीं कर पाएंगे. तो वर्क अपॉन योर पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन पे काम करें, बोलें, ग्रुप में कंफर्टेबल हों, है ना. अभी अकेले पढ़ते रहे, सिर्फ अकेले अकेले पढ़ते थे, मैथ सॉल्व करते थे, नंबर आ जाते थे, खुश रहते थे. टॉपर थे स्कूल में? हाँ, 10th में टॉपर थे. 12th में किस नंबर पे थे? कोई बात नहीं, मतलब परसेंटेज कितने थे 12th में? 80. एंड 10th में 86. चलिए ठीक है. तो अभी आपको कम्युनिकेशन पे वर्क करना पड़ेगा. हिंदी मीडियम में लैंग्वेज पे काम कर लो. लैंग्वेज पे काम करोगे तो सीख जाओगे. लैंग्वेज को हवा समझ के रखोगे तो नहीं सीख पाओगे. ठीक है. हिंदी मीडियम के मेरे बहुत सारे रिकमेंडेशन हैं जो हिंदी मीडियम के बच्चे सेलेक्ट होते हैं. ठीक है. चलिए,
तो वर्क करिए, स्टोरी आपकी ओनली 5-6 कितने 10 वर्ड लिखे होंगे आपने। प्रिपेयरिंग सेमिनार फॉर फ्री एजुकेशन, शुरुआत तो सही करी है बट इनसर्कल नहीं किया, बट आगे आपने पुअर वर्ड यूज़ किया। डोंट यूज़ पुअर वर्ड, अंडर प्रिविलेज वर्ड यूज़ करिए, पुअर मत यूज़ करिए, है ना। पुअर कुछ नहीं होता है, आज के बाद पुअर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे स्टोरीज में। किसी गरीब के बारे में बोलना चाह रहे हैं तो यूँ से अंडर प्रिविलेज, नीडी वन, इस तरीके से बनाएं, ठीक है। चेस्ट नंबर 9, बेटा देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी ग्रोथ के लिए आपने हीरो बनाया, राम रहीम सीता मत बनाइए, अपने रियल लाइफ के दोस्त के नाम लिखें एटलीस्ट। एज 32, वर्किंग इन द स्टील फैक्ट्री, ये काफ़ी लोगों ने मिस्टेक कमिट करी है। वर्किंग, क्या वर्किंग, स्टील फैक्ट्री में कोई तो पोजीशन होगी, तो कहाँ लिखा आपने, एज अ मैनेजर आपने लिखा, ठीक है। ही सॉ नहीं, नोटिस्ड, ऑब्जर्व्ड, ऐसे बेटर वर्ड यूज़ करिए। कंपनी ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग, क्यों डिक्लाइनिंग भाई, अचानक से उसने देखा कंपनी डिक्लाइन कर रही है, अचानक से कैसे देखा उसने, अच्छा ठीक है उसने देखा अचानक से डिक्लाइन कर रही है तो ड्यू टू तो लगाएंगे ना, ड्यू टू दिस, वो आपने वही लिखना है पहले और फिर उसी को एड्रेस करेंगे। तो आपने लिखा डिक्लाइनिंग, यहाँ तक भी चलिए ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी गोज डाउन, वही इसी बात को रिपीट किया, रिपीटिशन ऑफ थॉट आ गया। टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन ही ऑर्गेनाइज, अब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करना शुरू कर दिया, ग्रामेटिकल मिस्टेक करना शुरू हो गया। बीटेक एफ कैट स्टूडेंट जो बीटेक या ग्रेजुएट लेवल के एंट्री पे बच्चे जा रहे हैं, आई कैन नॉट अफोर्ड योर लैंग्वेज एरर वाइल राइटिंग स्टोरी, बी वेरी क्लियर। ही ऑर्गेनाइज कौन सा टेंस है बताइए मुझे, ही ऑर्गेनाइज्ड होगा, पास्ट में बना रहे तो पास्ट में बनाइए। देन कंपनी को मैनेजर मीटिंग ऑफ द ऑफिस, फिर ही आस्क, अगेन दूसरी मिस्टेक हो गई। फॉर द आइडियाज़ टू इम्प्रूव सिचुएशन, इंक्रीज एडवर्टाइजमेंट, इंक्रीज प्रोडक्शन, कैसे, आपने फिलोसफिकल एंड जर्नलाइज्ड स्टेटमेंट्स लिखे हैं, वेरेज इसकी नीड क्या है, ये प्योरली टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन है। स्पेसिफिक काम बताइए, स्पेसिफिक बताइए सेल में आपने क्या काम किया और सेल क्यों काम हुई और उसी को एड्रेस करिए। अगर इतनी दम है तब आप स्टोरी लिखिए ऐसी, नहीं तो आप ऐसी स्टोरी मत उठाइए। जर्नलाइज्ड हो गई आपकी स्टोरी, समझ रहे हैं, पता नहीं चला क्या काम किया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया, डिस्कस किया, इनवाइट किया, ऐसे तो कुछ भी लिख सकते हो आप, इनवाइट किया, डिस्कस किया, फ्रूटफुल सजेशंस लिए, ऐसे ये तो हो गया जनरलाइज वर्ड हो गया। नहीं, टीटी में ऐसे कभी मत लिखिए, अगर आप ऐसे टीटी लिखेंगे तो कभी इन नहीं होंगे। द मीटिंग हेल्ड सक्सेसफुली, दे गॉट द वेरी फ्रूटफुल आइडियाज़, ठीक है, ही एग्जीक्यूटेड आइडियाज़, कंपनी गॉट बेनिफिटेड, इस समथिंग। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो नहीं लिख सकते, ऐसे लिखेंगे तो मैं इसको कट कर दूंगा। बहुत लोग ऐसे ये ट्रिक खेलते हैं, ऐसे लिखते हैं स्टोरी, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, चेंज करिए। देन जीडी में पार्टिसिपेशन, आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर परफॉर्मेंस, फिश मार्केट के टाइम में बोल रहे थे, बोलने का मौका मिला तब नहीं बोल रहे थे, उस पर वर्क करिए। चेस्ट नंबर 18, एक और चीज़ है, दोनों लोगों में अपना हेयर देखिए कैसे है। एटलीस्ट यू शुड कॉम्ब योर हेयर प्रॉपरली, पार्ट ऑफ मैनेजिंग सेल्फ एंड मैनरिज्म। पीपीएनडीटी में मैनरिज्म एक 7 एस्पेक्ट में से एक है। जब पीपीएनडीटी का असेसमेंट होता है तो हम आपके मैनर्स भी चेक कर रहे हैं, आपका अटायर क्या है, आपका कंडक्ट कैसा है ग्रुप में, सेल्फ डिसिप्लिन आपका कैसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, पार्टिसिपेशन कैसा है, स्टोरी आपका कैसा है, स्टोरी आई कॉन्टैक्ट आपका कैसा है, लेआउट कैसा है, ये सारी बातें चेक होंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने लिखे आपने, बॉक्स फिलिंग सही से करी कि नहीं करी, बिकॉज मैंने बताया पीपीएनडीटी 3 चीज़ों का टेस्ट है, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन एंड इमेजिनेशन का, ठीक है। नाउ कमिंग टू चेस्ट नंबर 18, यू स्टार्टेड वेल, यू स्पीक कॉन्फिडेंटली, दैट इज़ अ गुड पार्ट इन यू। जब आप बोलेंगे तो लोग एटलीस्ट सुनेंगे, बट देखिए खुद आप बताइए, क्या आप सच में पीपीएनडीटी की जेन्युइन ड्रिल कर रहे हैं? बियर्ड नहीं आपने सही किया, किसी का हेयर कट सही नहीं है, किसी का बियर्ड एक्स्ट्रा है, किसी ने कैजुअल ड्रेस में बैठ के पीपीएनडीटी कर रहे हो, तो सच में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एटलीस्ट बी सिंसियर और सच में करो। ऐसे करो यहाँ पे कि मैं सच एसएसबी में बैठ के रियल में कर रहा हूँ, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैनरिज्म पे क्वेश्चन मार्क है। प्रिपेयरिंग सेमिनार फॉर द फाइनेंशियली अनस्टेबल स्टूडेंट, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क है मेरे। जब आप फंड मैनेज कर रहे थे तो आपने फंड कहाँ से, वो तो डीपीएस का स्कूल टीचर था, उसको फंड कहाँ से मिलेगा दूसरों के? डीपीएस तो नहीं देगी, डीपीएस के पास इतना पैसा नहीं, मना कर देंगे। तो आपने हीरो इज़ नॉट हैविंग दैट रेप्यूट टू परसू द मीनिंगफुल टास्क। आप उसको एनजीओ का वॉलंटियर बनाते, आप इसको इंचार्ज बनाते किसी चीज़ का, एनएसएस का बना देते, किसी ऐसे डिपार्टमेंट का बनाते जहाँ से उसको गवर्नमेंट का फंड मिल जाता। तो वहाँ फंस गए आपने, हीरो को गलत बना के, नीचे फिर गलती होती चली गई आपसे, ठीक है। तो हीरो को क्या करना है, काबिल बनाइए, वही जो काम कराने वाले हैं वही रिलेवेंट बनाइए। तो वो मैंने अंडरलाइन किया।
देन अगेन यू ऑल्सो कमिटेड मिस्टेक सेम, आपने लिखा ही शेयर, इसने लिखा ही ऑर्गेनाइज, हियर पास्ट में बनाइए. देन सम नीडेड आइटम्स, इफ यू राइट सम वर्ड इट शोज लैक ऑफ कंटेंट, लैक ऑफ इमेजिनेशन. तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि कभी भी स्टोरी राइटिंग में सम वर्ड, फ्यू वर्ड, ऐसे वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है. एक और चीज़ थी, ये अचानक से उसको कैसे ख्याल आ गया ये काम करने के लिए, तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ. कैन यू ऐड सम ओकेजन, जैसे जस्ट आदर्श ने ऐड किया है, आदर्श ने ऐड किया ऑन द ओकेजन ऑफ ऑर्गन डोनेशन, कुछ ऐसा ओकेजन. देखिए हम कोई स्पेशल अच्छा काम करते हैं, आप कुछ अच्छा काम टीटी में कराते हो, तो अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम कब अच्छा काम करते हैं बताओ? हम ओकेजन पे, मैं मिठाई बांट रहा हूँ, मेरा मन किया स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो मैं देखूंगा यार, या तो मेरा बर्थडे होगा या मेरा न्यू ईयर कोई होगा या दीपावली फेस्टिवल होगा, तभी तो हम करते हैं. अच्छा मुझे खुद बताओ, मैं अचानक से उठा नीचे, मैं अपने टीम को बोलूँ यार 2 किलो मिठाई निकालो, क्या किया, गया मैं और अपनी टीम को बैठाया और जाके ऐसे बांट के आ गया, तो यार वो मेरा ड्राइवर और मेरे साथ वाले सोचेंगे यार ये क्यों बांटा इस, तो बाद में जरूर धीरे से पूछेंगे सर आज क्या है, होता है कि नहीं होता बताओ? ये मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टोरी पे आप ही क्वेश्चन मार्क कराते हो कि स्टोरी कन्विंसिंग, प्रैक्टिकल, लॉजिकल नहीं है, वर्केबल नहीं है. कन्विंसिंग दिखाने के लिए क्या करिए, ऐड सम ओकेजन, मेक योर हीरो एलिजिबल टू परसू द मीनिंगफुल टास्क, ऐड क्वालिटी टास्क एज पर द रिलेशन टू स्टिमुली, और एक इंपॉर्टेंट टास्क उठाइए जो स्पेसिफिक हो, जो शॉर्ट टर्म हो, जो मीनिंगफुल हो, जिसमें ग्रेविटी हो, और काम रिसोर्सफुलनेस दिखा के काम कराइए. तो वहाँ पे फेल हो गए. अब समझ गए फीडबैक से, एग्री, समझ गए ना? ओके. बाकी यू स्पीक क्लियरली, सबसे अच्छी बात है कि तुम बोलते सही हो, तुम लॉजिकल बोलते हो. नाउ कमिंग टू ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में भी मैंने तुम्हारा एक पॉइंट नोट किया. ग्रुप डिस्कशन में आपके पास क्या था कि लो लेवल डिस्कशन, यू आर डिस्कसिंग अबाउट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, दैट आई कंसिडर टू बी लो लेवल डिस्कशन. आप वाई टू वेस्ट टाइम, ये इतना टाइम यहाँ नहीं है कि आप डिसाइड, सबको पता है 4 कैरेक्टर्स, किसी ने 3 नहीं बोला, किसी ने 6 नहीं बोला, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर मेल फीमेल पे नहीं डिस्कस करना है यार, सीधे उसके आगे की बात करो जल्दी से. अच्छा कितने लोगों ने पैराफ्रेजिंग करी है, उत्कर्ष कर रहा था, बहुत कम लोगों ने क्वेश्चन पूछा ग्रुप से. सो दैट इज बेस्ट टेक्निक कि आस्क फ्रेंड्स कैन वी मेक दिस एज अ कॉमन ग्रुप स्टोरी, करके देखो फ्रेंड्स. अच्छा एक तुमको ये हो गया जिसमें तुम क्वेश्चन पूछने जा रहे हो, एक तुम्हारा एक बार जीडी में बोलने जाओगे. दूसरा पॉइंट, पिक्चर को उठाओ, पिक्चर से रिलेट करके, फ्रेंड्स एज इन द पिक्चर वी कैन सी दैट देयर वर 2 फीमेल एंड सम डेस्क वर आल्सो प्लेस्ड देयर. सो फ्रेंड्स कैन वी से दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, समथिंग लाइक दैट, जो भी आप बोलना चाहते हो. तो आप पिक्चर से कनेक्ट करके एक आइडिया दो, ये दूसरा आइडिया आपको मिल गया, उसके बाद अपनी स्टोरी से आगे बढ़ो. ठीक है, तो ये वहाँ पे आप फेल थे, उस पर वर्क करिए. नेक्स्ट कमिंग टू चेस्ट नंबर 58, एक और चीज़ है जो आप कैप और ये सब पहनते हैं, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप से बाहर ना दिखें. आप बताइए 15 लोगों का जीडी चल रहा है पीपीएनडीटी में, एक आप अलग से कैप लगा के बैठे हैं, आप ग्रुप से अलग हो गए पहले ही. और जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट इज़ ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप जैसे दिखने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड हाउ टू ऑपरेट विद द ग्रुप लेवल. जस्ट नंबर 58, स्मार्ट विलेज के लिए सरपंच तो नहीं लग रहा था, सरपंच का ऑफिस ऐसे नहीं होता है. नहीं, आपने बोला यंग सरपंच in the village working tirelessly to improve village. He gets to know about the PMS Smart Village scheme. He observed what more required in the village, internet connection. और क्या लिखा आपने? Computers, जन सेवा केंद्र, ATM or needed. He goes to DM office, district, gives his detailed report. DM office से आपने कनेक्ट किया, ठीक है. बट GD में पॉइंट इज, आपने पहला इनसर्कल नहीं किया, दूसरा विलेज आपने कनेक्ट किया बट ज़बरदस्ती कनेक्ट लग रहा है, विलेज से था नहीं है. मतलब एक ऐसा लग रहा था कि या तो वो MNCs के लोग हैं या तो वो किसी प्रोफेशनल अटायर में लोग थे. बैकग्राउंड देखोगे तो बैकग्राउंड ऐसा लग रहा था कि किसी सिटी का ऑफिस है. मैं विलेज सरपंच को मान लेता अगर सरपंच जैसा अटायर होता सामने बैठे हुए लोगों का. नहीं लग रहा है सरपंच. हमें देखो, आप 10 सरपंच उठा के देखो, आप सरपंच गूगल में डालो, सरपंच ऑफ कोई विलेज का, विलेज का सरपंच है. अगर वो इतने स्मार्ट अटायर में होता तो विलेज का सरपंच नहीं होता. तुम मुझसे नगर पंचायत का वो बोल देते, हेड बोल देते, ईओ बोल देते. ईओ भी तो बोल सकते थे, ईओ मान लेता मैं, ठीक है. तो ईओ बोलिए, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बताइए. तो थोड़ा सा रिलेट करो, अटायर से रिलेट करो. मैंने देखो
अब मैं फिर जा रहा हूँ, मैंने कैसे बोला ऑब्जर्व करने के लिए, हाउ टू ऑब्जर्व में मैंने बताया अटायर, एक्सप्रेशन, वेयरिंग, है ना बोला था, तो वो मैच नहीं कर रहा था। एक मेरी सीरियस ऑब्जर्वेशन आपके साथ, यू अगेन सिमिलर टू चेस्ट नंबर 18, यू बोथ हैव वेरी गुड पोटेंशियल, तुम दोनों के अंदर दम है। मैंने जानबूझ के आउट किया बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर फ्रॉम यू। तुम तीसरी पीपीएनडीटी, चौथी पीपीएनडीटी कर रहे होगे, कितनी होगी पीपीएनडीटी? थर्ड पीपीएनडीटी है, तो आज तो गलती नहीं करनी थी, बट द वे यू आर कन्वर्सिंग ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन, चेस्ट नंबर 58, एग्रेसिव, ओवर एग्रेसिव है आप। ट्राई टू मेंटेन दैट कामनेस, वो नहीं आ रही। अच्छा, आप कहते हो कि सर यहाँ तो कम टाइम है, कामनेस कैसे मेंटेन करूँ? तो रेट ऑफ स्पीच थोड़ा ज़्यादा तेज था, एडमिनिस्ट्रेटिव टोन जैसा लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि आप दोस्तों के बीच बात कर रहे हैं। ये काफ़ी लोगों के साथ था, चेस्ट नंबर 58 के साथ था, 77 के साथ था। यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन क्रिएटिंग फिश मार्केट। रेट ऑफ स्पीच आदर्श आपका भी थोड़ा ज़्यादा तेज है, रेट ऑफ स्पीच को थोड़ा स्लो रखिए। मैं बोल रहा हूँ, ओके नाउ लास्ट 1 मिनट ऑल टुगेदर डिस्कस एंड कम आउट। मैं पूरी बात नहीं कर रहा हूँ, आदर्श ने फायर करना शुरू कर दिया। क्यों भाई? ऑलरेडी तुमने बोल लिया था सफिशिएंट टाइम, कांट यू वेट टू कंप्लीट द इंस्ट्रक्शंस? तुमने मेरे सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, तुमने लास्ट में तुमको ऐसा क्या बोलना था कि तुमने इंस्ट्रक्शंस के बीच में ही बोलना शुरू कर दिया। दैट मे लीड टू रिजेक्शन। नेक्स्ट इज चेस्ट नंबर 62। 62 पहले मैंने आउट कर दिया था। ब्लड डोनेशन का कोई भी वहाँ पे केस नहीं लग रहा था। देखिए, ब्लड डोनेशन के लिए कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट रखा होता तो मैं मान लेता। इतने ध्यान से पीपीएनडीटी में ये देखना है। जब ये बात समझ जाओगे तो आउट नहीं होगे, पीपीएनडीटी इन हो जाओगे, फिर मुझे थैंक यू बोलोगे तुम। मैं बता रहा हूँ ना, जिसने ये बात समझ ली ना वो आउट नहीं हो। ये लड़के जा रहे हैं, मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ, 98, 148, आदर्श, ये सब कभी ये जितनी बार जाएंगे स्टेज 1 गया 2 बार 3 बार, सब में स्टेज 1 क्लियर है। और ये बात मैंने पहले बता दिया था, ठीक है ना। तो ये टूल्स हैं ये यार, मैं टू द पॉइंट आपको बता रहा हूँ, वो ये करना है, तब भी तुम नहीं करोगे। फिर ब्लड डोनेशन जबरदस्ती लेके आओगे तो नहीं चलेगा। वहीं से स्टोरी, मैं बोल रहा हूँ पिक्चर से स्टोरी निकालो, ठीक है। तो तुमने थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, जब ये करोगे और रेलेवेंट नहीं होगा तो पता क्या, प्री कंसीव्ड लगेगी स्टोरी आपकी, कि स्टोरी इज प्री कंसीव्ड, ठीक है। उस पर काम करिए। बट लेट मी एक्नॉलेज योर एफर्ट्स कि तुमने लास्ट में मौका ग्रैब कर लिया। व्हेन यू गॉट अपॉर्चुनिटी, ब्यूटीफुली यू नरेटेड योर स्टोरी, दैट यू इम्प्रेस मी। तो मैंने उसको कट किया और मैंने उसको डी में डाल दिया। नहीं, ये केस है, जेन्युइन है। तो देखो, ये है वर्स्ट सिनेरियो कि आपका परफॉर्मेंस, नरेशन अच्छा नहीं, स्टोरी अच्छी नहीं मिली, फिर भी आप इन हो गए, ठीक है। तो आप आउटकम ऑफ द स्टोरी, जब आपका लास्ट में टाइम मिलता है टू कंक्लूड द ग्रुप स्टोरी, अगर आपको लगता है आपकी स्टोरी रेलेवेंट नहीं है, अच्छा मान लो आज ऐसा केस होता कि इन्होंने एग्री नहीं किया होता, तो तुम पता क्या, तुमको चांस ले लेना चाहिए था। हाँ, ले लेना। फ्रेंड्स, डू यू एग्री? मे आई प्रोसीड फॉर द कॉमन ग्रुप? मे आई कंक्लूड द कॉमन ग्रुप स्टोरी? फ्रेंड्स, सवाल पूछ लो। अगर ये केस हो, स्टोरी इरेलीवेंट, कोई सुन नहीं रहा है, जीडी में पॉइंट नहीं है, लास्ट में खेल जाओ ऐसे, समझ गए ना। लास्ट में चांस देना, क्योंकि तुमको पता है अब मैं आउट हो गया, तो अभी मेरे पास लास्ट चांस है, लास्ट तक छोड़ना नहीं। अच्छा, जब बोलोगे ये बात, फ्रेंड्स, मे आई प्रोसीड फॉर द कॉमन ग्रुप स्टोरी विद योर परमिशंस, उन्हीं की तरफ देखना जो जिनसे तुम्हें उम्मीद हो हाँ बोलेंगे वो। कॉमन सेंस यूज करना। ये तुमको लग रहा है ये तुम्हारे दोस्त हैं, तो तुम जब बोलोगे तेज बोलना, फ्रेंड्स मे आई प्रोसीड विद द कॉमन ग्रुप। तुमको पता है ये बोलने वाला है, तो इसी के साथ ये बोलेगा यस, खट से खट, थैंक यू फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये दिमाग लगाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक है। एक और चीज है, आप पीपीएनडीटी में उनको ज्यादा देखते हैं, उनसे 1 to 1 ज्यादा होते हैं जो ज्यादा आर्गुमेंटेटिव होते हैं। इसका उल्टा करिए। आइडेंटिफाई वेरी गुड लिसनर्स फ्रॉम योर ग्रुप 58। ये दोनों भिड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। इसने एक भी बार इनको एड्रेस नहीं किया। अगर एक बार एड्रेस करता तो ये इसको सब सुनते और इसकी कॉमन ग्रुप स्टोरी बनती। बोल अच्छा रहा था, बट गलत एंगल पे बोल रहा था। देखिए, माइन्यूट सी बात है, ठीक है ना। सीख रहे हैं ना, समझ रहे हैं करना क्या है। ट्रिकी है, देखो तुम देखो ट्रिकी कितना है। तुम ये ट्रिक्स लगा ले जाओगे, कभी पीपीएनडीटी में आउट नहीं होगे। मेरे बच्चे नहीं आउट होते, ठीक है ना। तो चेस्ट नंबर 77, 1 to 1 मत हो भाई साहब, फिश मार्केट मत क्रिएट करिए, नीज पे हाथ मत रखिए, ओपन फिंगर्स मत करिए। राकेश, डेडिकेटेड स्टूडेंट जैसे तुमने बनाया था, और टास्क पे क्वेश्चन मार्क था मेरा, तो स्टोरी से मैं इंप्रेस नहीं हुआ था। अभी यू आर लैकिंग द सेंस हाउ टू ड्राफ्ट ए स्टोरी, ठीक है। डेडिकेटेड स्टूडेंट से तुम कई बार, किसी ने टीचर बनाया, डीपीएस का टीचर बनाया, किसी ने कोई उसको इंचार्ज नहीं बनाया, मैंने कट करके लिखवाया, जिसने टीचर उसको इंचार्ज,
स्किल डेवलपमेंट, इंचार्ज बनाओ, कुछ हल्का सा पोस्ट ऊपर रखो। जैसे उसके बाद आप काम कराओगे तो लगेगा कि यार वो वजन काम में लगेगा, बट आप पहले नीचे प्रोफाइल दे दोगे उसको, थोड़ा तो रेपुटेशन रखो। हीरो मस्ट बी हैव सम रेपुटेशन अर्नेस्ट विद द, लेकिन वो दैट इज अ यू नो टाइम वेस्टेज। आपने आगे एक्स्ट्रा टाइम लिया ना उसको प्रूफ का, पहले लिखो उसको, ठीक है। डेडिकेटेड स्टूडेंट अर्नेस्ट विद द, क्या लिखा आपने, वर्क आफ्टर कंप्लीटिंग, ही शुड परसू देम, टीचर काउंसल्ड हिम। लो लेवल स्टोरी बेटा, ठीक है, सही करिए, स्टोरी सही कर, सोशल स्टोरी डालिए। टीएस वालों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या होती है, दे आर फेल्ड इन राइटिंग सोशल स्टोरीज, क्योंकि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री उनको लाइसेंस भी लगता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, ध्यान रखना। बी कंफर्टेबल इन ग्रुप, डोंट बी 1-to-1, डोंट यूज एडमिनिस्ट्रेटिव टोन, ओके, डोंट आर्ग्यू वाइल ग्रुप डिस्कशन, डेवलप परसुएसिव स्किल, डेवलप क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट, उस पर काम करिए। चलिए नेक्स्ट टेस्ट नंबर 79 बेटा, अटायर इज गुड, एक्सप्रेशंस आर ओके, मैनर्स में कोई डाउट नहीं है, कम्युनिकेशन में कोई डाउट नहीं है, यू स्पीक क्लियरली, बट यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। उसमें आप स्ट्रैटेजिक नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पीपल आर नॉट लिसनिंग टू यू, नॉट इंटरेस्टेड। तो दो चीज़ें करिए, जीडी में वॉल्यूम बढ़ाइए, आपका नरेशन में वॉल्यूम अप होना चाहिए, 58 का जैसे वॉल्यूम है, 18 का वॉल्यूम जैसे है, आदर्श का वॉल्यूम जैसे है, 98 का वॉल्यूम बहुत अच्छा था, 98 को देखो, 98 का वॉल्यूम देखना, क्योंकि क्लियरली बोला उसने, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, पहले ही शुरू करो तेज, पहले ही फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारा हेलो फ्रेंड्स से आ जाता है पीपीएनडीटी में, और हेलो फ्रेंड्स धीमा हुआ, हेलो फ्रेंड्स हुआ, पहली वाई यहाँ पे फर्स्ट लास्ट इंप्रेशन है, समझ आ जाता क्या करेगा कैंडिडेट्स। तो पहले ही तेज बोलना है, हेलो फ्रेंड्स, एकदम जैसे इसने बोला 98 का, रिपीट करके देखना, अगर इसको बोलोगे उसने तुमको देगा इसने कैसे बोला, कैसे शुरू किया। वो पहला ही इंप्रेशन, हेलो फ्रेंड्स पढ़ गया, हाँ मैं अटेंशन होगा, ओके। क्यों, सेल्फ कॉन्फिडेंस के नंबर हैं पीपीएनडीटी में, ये कोई 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है, बट इसके नंबर हैं पीपीएनडीटी में, समझ गए। तो रिमेन कॉन्फिडेंट, तेज बोलो, पहले तेज बोलो, कोई बात नहीं। 3 पार्ट में स्टोरी, आपको डाउट है कि मैं रुक तो नहीं जाऊंगा, 3 पार्ट में ब्रेक कर लो स्टोरी, पहले पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, 3 में डिवाइड कर लो। पास्ट हो गया इंट्रोडक्शन टास्क, और एक्शन हो गया प्रेजेंट, एंड आउटकम हो गया इमीडिएट, आउटकम हो गया फ्रूटफुल आउटकम हो गया फ्यूचर। तो 79 चेस्ट नंबर 79, योर नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर 1 ऑब्जर्वेशन 70 वर्ड की स्टोरी है। नंबर 2, यू ऑल्सो मेंशन्ड यू आर लैकिंग इन ड्राफ्टिंग, जैसे आपने लिखा दे गेव सम आइडिया, सम आइडियाज होगा, तो बीटेक स्टूडेंट से ये टेक्निकल एरर उम्मीद नहीं है, एफकैट के लिए जा रहे हो इंग्लिश अच्छा करके, तब आपने रिटन क्वालिफाई किया है। मेक, तो 2 मिस्टेक थी आपकी लैंग्वेज एरर में, एरर थी। देन ऑल्सो जो न्यूज़ आर्टिकल में सेशन में पब्लिश हो गया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर थीम सिलेक्शन दैट पीएचडी पेपर्स, रिसर्च पेपर्स के लिए डिस्कशन करने के लिए वो गया था, ठीक है। तो व्हाट इज आउटकम, व्हाट इज आउटकम बताओ। सर जैसे डिपार्टमेंट में सबकी रिसर्च पेपर नहीं पब्लिश होते ना, हाँ, किसी रिनाउंड में, ठीक है, तो अगर उसका सिलेक्ट हुआ मतलब देन व्हाट यू वांट टू कन्वे, इंडिविजुअल अचीवमेंट बट नॉट अ सोशल, इट इज इंडिविजुअल अचीवमेंट, यू आर ट्राइंग टू शोकेस इंडिविजुअल अचीवमेंट, किसी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ने में है, उसका तो गया, उसका आर्टिकल पब्लिश हो गया। ये स्टोरी बोर्ड कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। बोल रहा हूँ पीपीएनडीटी में मौका है, ट्राई टू रेंडर सेल्फलेस सर्विस, कुछ ऐसा दिखाओ जिसमें आउटकम पीपल मास कम्युनिटी इज गेटिंग बेनिफिटेड, बोल रहा हूँ बार बार, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, आपने इसीलिए ज्वाइन किया है, आपने दोबारा ज्वाइन किया इसीलिए ना, तो आपको पता चल रहा होगा कि क्यों, तो साइक की वजह से आउट हुए, फिर ये ऐसी स्टोरी बनाओगे तो आउट हो जाओगे, उस पर काम कर लो, सही हो जाओगे, ठीक है। अदरवाइज अच्छी बात क्या है, यू स्पीक कॉन्फिडेंटली, क्लियरली, अच्छा पर्सोना है, ठीक है, अटायर अच्छे हैं, एक्सप्रेशंस ठीक हैं, है ना, ये सब पॉजिटिव है। इस पर काम, थोड़ा फॉर्मल वगैरह पहनोगे ही तो वो कर लोगे तो सब सही हो जाएगा, अच्छा चांस हो जाएगा, एंड यू आर सिंसियर, तो अच्छे चांस बन जाएंगे। देखिए आप यहाँ आज गलती कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बट यू शुड नॉट रिपीट इट, है ना। चेस्ट नंबर 83, देखिए ही न्यू हाउ टू इंट्रोड्यूस स्टोरी। अगर आप स्टोरी इसने 70-80 वर्ड लिखा है, लेकिन आपका जो इसका सीक्वेंस अगर देखोगे तो इसका सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो लगता है लेट टू द सिचुएशन, ठीक है, लेट टू द सिचुएशन इसका सबसे बेस्ट है। एक एक वर्ड मैं इसके एक स्टोरी की, ऐसे बच्चे जो होते हैं उनकी एक स्टोरी का मैं एक वर्ड टच नहीं कर पाता हूँ, अगर मैं चाहूँ कि एक वर्ड इसको अंडरलाइन कर दूँ नहीं कर पाऊँगा,
ठीक है। तो अब देखो इसने कैसे शुरू किया, डॉक्टर अर्नब 24 MBBS डॉक्टर एट KGMU लखनऊ, फुल स्टॉप। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में उसका 7 वर्ड्स में पहला हीरो इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन आ गया। अब दूसरी लाइन में क्या चाहिए, टास्क इंट्रोडक्शन। अब आया ऑन द ओकेजन ऑफ ऑर्गन डोनेशन डे, आ गया, सिनेरियो डेवलप कर रहा है। तो लेट टू द सिचुएशन में क्या करना है तुमको, सिनेरियो डेवलप करा के प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करो, टास्क इंट्रोड्यूस करो, प्रॉब्लम या टास्क, मीनिंगफुल टास्क। ही डिसाइडेड टू सेट अप कैंप्स टू अवेयर पीपल अबाउट डोनेटिंग ऑर्गन। अब नंबर ऑफ वर्ड काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 10 वर्ड्स मान लो, तो अराउंड 15-16 वर्ड्स में इसने लेट टू द सिचुएशन दे दिया। अब इसके तुरंत बाद इसका एक्शन शुरू हो गया, ही फॉर्म्ड अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, कॉमा, promoted camp through cards, comma, social media, comma, decided time and venue, comma। ये क्या है, एक्शन पार्ट है। तो एक्शन पार्ट में तुम्हारा एक्शन पार्ट अच्छा है, बट आज तुम कहाँ फेल हुए, लेट टू द सिचुएशन में फेल हो गए, रेलेवेंसी में फेल हो गए, बट तुम्हारा यू नो एक्शन पार्ट, तुम्हारा सबसे बेस्ट है एक्शन पार्ट। तो ऐसे काम करिए, ठीक है। तो देन स्टोरी वॉज गुड, नरेटेड वेल, GD में रेट ऑफ स्पीच, दूसरों को भी देखिए, तुम दिखाते तो हो लेकिन थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है, दिखाते हो कि मैं ग्रुप में कंफर्टेबल हूं, बट ग्रुप में कंफर्टेबल नहीं हो तुम, नेचुरली बोलिए, रेट ऑफ स्पीच नॉर्मल रखिए, सच में बात करिए, सच में बात नहीं कर रहे हो, अपना पॉइंट ट्रिगर करते हो, फायर करते हो, ट्रिगर करते हो, फायर करते हो, ऐसे नहीं लगना चाहिए। कैसे हम बात, 4 दोस्तों के बीच में कैसे बात करते हैं, ओके लेट्स टेक इट आइडिया फ्रेंड्स, ओके ऐसे करके बोलो, दूसरों को रेफर करते हुए बोलो, ठीक है। और कट मत करो, इंस्ट्रक्शंस को कट किया आपने, उसमें क्या होगा कि अगर आपने किसी इंस्ट्रक्शन को कट किया तो वो ईगो में ले लेगा, और अगर एसेसर ने ईगो में ले लिया तो तुमको नहीं करेगा, बोले आउट, ब्लडी अभी ये लेफ्टिनेंट भी नहीं बना, ये तो पहले नहीं सुन रहा यार कर्नल की, वो बोलेगा बाद में तो ये कर्नल को उड़ा देगा, तो इसको पहले ही रिजेक्ट करो ठीक है ना तो ध्यान रखना, ये फौज का थोड़े से रूल्स हैं, उनको फॉलो, एटिकेट्स हैं, इथिक्स हैं, इनको मिलिट्री इथिक्स फॉलो करिए। नेक्स्ट टेस्ट नंबर इज उत्कर्ष का। उत्कर्ष कोडिंग वोडिंग आ गया, अगर कहीं कंप्यूटर रखा होता, लैपटॉप रखा होता तो मैं मान लेता, वहीं से स्टोरी इरेलीवेंट बन गई। इम्प्रूव तो काफ़ी है तुम्हारा, मतलब काफ़ी इम्प्रूव है, बट अगर ऐसी अभी स्टोरी में मैं थीम सिलेक्शन पे लास्ट टाइम भी गड़बड़ हुआ था, इस बार भी थीम सिलेक्शन पे गड़बड़ हुआ, उस पर काम करिए। अभी एक्शन पार्ट से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, एक्शन पार्ट पे काम करिए। ग्रुप डिस्कशन में यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर लेवल, पहले से जो बहुत ही स्टिफ होके बैठते थे आज बेटर आया, आज बेटर आया, थोड़ा सा लाइवलीनेस दिख रही थी, कर रहे हो उस पर काम, उस पर और काम करो, थोड़ा सा शार्प लुक देने की। देयर इज अ एक्स फैक्टर होता है, एक एक्स फैक्टर समझते हो, हर किसी की एक पर्सनालिटी से कुछ वाइब आती है ना। जब तुम किसी फीमेल को देखते हो तो तुम्हें एक चीज़ बहुत अच्छा अट्रैक्ट करते हो, तुम किसी एक चीज़ से, अच्छा उसकी स्माइलिंग या किसी एक चीज़ से हम अट्रैक्ट होते हैं हर पर्सनैलिटी में, तो वो ढूंढो अपने अंदर क्या है कि मुझे क्या हाईलाइट करना है, ठीक है, समझ गए ना। वो शार्प लुक आना चाहिए, अटायर आना चाहिए। जैसे तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, चेंज करो, छोटे बाल करा लो एकदम, तुम भी कर लो छोटे बाल। जब इफ़ यू कांट कैरी योर हेयर वेल तो क्या करो, छोटे करा लो। तुम्हें डाउट हो रहा है कि कौन से कलर के कपड़े पहनो, तो सारे वाइट कलर के ले आओ, 7 कपड़े हो, 7 दिन वाइट कलर पहनो। दिस वे यू कैन कीप योर माइंड डिक्लटर्ड, ठीक है। तो उत्कर्ष थोड़ा इस पर काम करिए, पहले से बेटर है। थोड़ा आर्टिफिशियल अभी भी है, लेकिन काफ़ी तुमने उस पर 50% हटा दिया है तुमने। और वो कैसे आएगा, जब तुम एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हो, स्पोर्ट्स में इंगेज करो। मुझे याद है जब तुम NDA के लिए आए थे तो भी मैं तुमको ये बात बोल रहा था, स्पोर्ट्स में इंगेज करो, खेलो, लाइव एक्टिविटीज़ करो, ठीक है, लीड करो ग्रुप में, और अच्छी पढ़ाई अपनी लाइफ में करो, तो अपने आप तुम्हारी ये पर्सनैलिटी अपने आप चेंज हो जाएगी, ठीक है। रेस्ट इज़ ओके, काफ़ी इंप्रूव था, बट आज स्टोरी पार्ट से मैं सेटिस्फाइड नहीं था।